हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमो दीदी ड्रोन स्कीम के बारे में। यह स्कीम रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज की है रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग द ड्रोन्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस स्कीम के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू हेल्प देम इन द their productivity as well as for the delivery of the different kind of the things specifically in the agriculture sector. ओके, तो चलिए देखते हैं स्कीम के बारे में है क्या। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द स्कीम है क्या। नमो दीदी ड्रोन स्कीम इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और द स्टेट स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पे पूरा फंडिंग सेंटर के द्वारा होता है, सेंटर ही हेल्प करता है, सेंटर ही फंड करता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप for the agriculture and livelihood sport. So this become the aim and objective of the scheme to provide the drones. It become the aim and objective of the scheme to provide the drones as well as the for the livelihood of the women in the self help group. And the specifically budget रखा गया है इसके लिए 1261 crores for the year 2024 and 2025 के लिए. And there is a specifically target for this scheme also 10,000 drones government will supply to the women self help group under this scheme. Now let's move to the next one. What are the progress in the target under this scheme? In the 2023-24, when the scheme was announced in the first phase, there were the 500 drones procured by the government, and that's given by the Lade Fertilizer Company. It's a fertilizing company that's given this drone, the Lade Fertilizer Company. तो आपको इसका नाम याद रखना है, Lade Fertilizer Company. Lade Fertilizer Company, and it is distributed to the different kind of the self help group. 500 drones थे जो पहले 2023-24 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए by the Lade Fertilizer Company, and in 2025 its target to distribution of drones to the 3090 self-help group. And now there is a target to distribute the 3090 self-help group को ये drones को distribute करना है by the central government with the help of the state government. Okay, so here we also need to know about the implementing agency. Which agency are implementing this scheme? Which agency are implementing the नमो दीदी ड्रोन स्कीम? तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है विच आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रिलेटेड टू इट। द फर्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, द सेकंड इज द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द थर्ड इज द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। सो दीज थ्री आर इन्वॉल्वड इन इट। टू कोलैबोरेशन अंडर द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय लाइवलीहुड मिशन के अंडर, देन द लेड फर्टिलाइजर कंपनी। दीज आर द two collaborators under the implementing agency. So implementing agency specifically Ministry of Agriculture, implementing agency specifically Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Department of the Rural Developments, Department of the Fertilizers, and the two collaborators are the Women Self Help Group under the Deen Dayal Upadhyay National Rural Livelihood Mission and the Laird Fertilizer Company. And what are the state level implementation? What are the state level implementation under this scheme? क्या क्या state level की implementation scheme के अंदर? Let's see. What are the state responsibility? One, responsibility is the selection of the cluster. Selection of the cluster for a drone usage. We need to focus on the area जहां पे हम उसका यूसेज कर सकते हैं ड्रोन का, उस एरिया उस क्लस्टर को सिलेक्ट करना कि जहां पे ड्रोन का यूज किया जा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वुमेन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ वी नीड टू बी सिलेक्ट द बेनिफिशियरी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो प्रोग्रेसिव वुमेन है, जो काम करना चाहती हैं, जो इस टेक्निक्स को सीखना चाहती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 3090 ड्रोन थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज प्रोग्रेसिव वुमेन। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन उनका ट्रेनिंग सिलेक्शन करना, उनको पायलट ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग्स देना, उनको असिस्टेंट रोल सिखाना, असेसमेंट ऑफ ड्रोन यूसेज एंड रिक्वायरमेंट, हाउ टू असेस द ड्रोन, कैसे उसका यूसेज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकली, मीन्स ड्रोन चलाने के लिए उनको ट्रेन करना ताकि तो ड्रोन का एक ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर पाए। एंड टू कोऑर्डिनेशन विद द डिफरेंट काइंड ऑफ लेड फर्टिलाइजर कंपनी और पेस्टिसाइड कंपनी के साथ इनका कोऑर्डिनेशन करना स्टेट एजेंसीज का, ताकि जो स्कीम है वो एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए इन द different cluster of the country. What are the use of the drones under the scheme? If इस scheme के अंदर there are different kind of the uses of the drones. अगर आप देखेंगे तो primary uses है spraying of the liquid fertilizers. Second is the promotion of the nano fertilizer for the sustainable agriculture. As the government released the nano fertilizer, nano urea, now they want to distribute. Now they want to spray these fertilizers and fertilizer of the nano urea through these drones. So they also training the self-help group women how they can do that. Then the self-help group to provide the rental services to the farmer using the drones. There are some agriculture benefit also, efficient and the uniform spraying of input, reduction in the labor and the time required for the field operation. ये आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में डाल सकते हैं कि ड्रोन्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कैसे यूज किया जा सकता है। एंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2021 में 2021 में ड्रोन के एप्लीकेशन पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे कैन बी यूज फॉर स्प्रेइंग द लिक्विड फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, एंड दे कैन be also
यूज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। सेल्फ हेल्प ग्रुप टू प्रोवाइड डेंटल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है इन ड्रोन्स को। एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म स्प्रेइंग के लिए इनको यूज किया जा सकता है। तो ड्रोन पैकेज में स्पेसिफिकली क्या क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट देने वाली है? सबसे पहले ड्रोन्स, कंप्लीट ड्रोन्स देने वाली है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग, मैंडेटरी ट्रेनिंग टू ड्रोन पायलट रोल्स। विदाउट ट्रेनिंग हाउ दे गोइंग टू ऑपरेट दिस ड्रोन, बिना ट्रेनिंग कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उस पर ध्यान रखा जाने वाला है। Additional agriculture specific trainings with the nutrient and pesticide application. And this has become the more important if they are using the drones, then how they are focusing on the nutrition content, nutrition content पे किस तरीके का फोकस कर रहे हैं, इन सब चीजों पे, पेस्टिसाइड पे किस तरीके का फोकस कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड को कितना यूज करना है, कितने अमाउंट में यूज करना है, वो सारी चीजों पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का फोकस रहेगा when they are distributing drone to these self help group women. ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर द अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स की, अगर मैंने एक को सिखा दिया तो बाकी वुमेन्स को दैट पर्सन कैन ट्रेन, जिन्होंने पहले से सीखा है, तो उसका मीन ऑप्टिमम यूसेज ऑफ ट्रेनिंग एज वेल। if we are training the one person or two person in the self help group, then they can train their family, then they can train their friends also. So this is a part of the drone package. What is the livelihood support and the business model? What are specifically the livelihood support and the business model under this scheme? The purpose of the drone to provide the rental service देना, जैसे हमने पहले भी देखा कि रेंटल सर्विस प्रोवाइड करना, स्प्रे, लिक्विड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के लिए प्रमोशन करना थोड़ा नैनो फर्टिलाइजर्स एंड द बिजनेस एश्योरेंस। अगर स्पेसिफिकली स्टेट कमेटी मैंडेट करेगी तो एंश्योर द बिजनेस सपोर्ट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिक्विड फर्टिलाइजर कंपनी एंड द पेस्टिसाइड कंपनी। अब इसमें स्पेसिफिकली दो चीजों पे ध्यान रखा गया। पर्पज ऑफ ड्रोन, सबसे पहले रेंटल सर्विस के लिए दे देगा, उसको रेंटल सर्विस के लिए यूज करना। सेकंड, स्प्रे of liquid on the fertilizer and the pesticides. The second is the promotion of the nano fertilizer through the drones. Nano fertilizers का promotion drones के through, it can be the easily spreadable, आपको यूज नहीं करना तो drones के through आप इसको easily spray कर सकते हैं in the fields. Second is the business assurance. जो states कमेटी उन्होंने mandate किया कि ensure करना business support to the self help group for via the coordination with the lead fertilizer company and the pesticide company के through इनको business model में इंक्लूड करना टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस स्कीम। दिस वाज अबाउट द लेड फर्टिलाइजर्स। तो ये था नमो दीदी ड्रोन स्कीम के बारे में। आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसको मेंशन कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में एज अ केस स्टडी, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आप इसको मेंशन कर सकते हैं कैसे गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग द वुमेन्स फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे गवर्नेंस में इसको यूज किया जा सकता है। आपके प्रीलिम्स में इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है ड्रोन्स का। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।